So hi, hello everyone. My name is Anand, and welcome to our first session of our Python series. So we all be learning from the basics and building a strong foundation step by step. Okay, so let's keep this session interactive, and you can ask me questions anytime you want. Okay, so starting with I'll do the first session with the intro of Python. Okay, so many of the people are going through Python language has a difficulty. Okay, but as in my opinion, the Python language is very much easy. Okay, so I'll just share my screen first. Okay, so with starting with the intro, I'll do one thing. If you're, I hope you guys would be having laptop, right? If you don't, you can just pay attention to the meeting. So I'll send you the recording after the meeting. Okay. Starting with we can. I'll just introduce you with this online GDP. This is a platform where we can code many things like the language. If you want, you can see on the right hand side that we can see there are many languages like Java, C++, C, Python. So we will be starting with the Python. Okay. As you can see, if I hit on the Python, if I select the Python language, you can see on the screen. I hope the screen is visible, right, Amit? Yes, it's visible. Okay. So it's showing welcome to the GDP online, and it's the first statement is giving is print hello world. In Python language, every coder knows that its first language, first code we type has a print hello world. Okay. So I'll just give you some what we say step by step introduction for this. What online GDP is. First, I'll just remove this code. Okay. सो प्रिंट प्रिंट में हम लोग कुछ भी चीज हमें चाहिए जो कि हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके वेट अ सेकंड ओके तो स्टार्टिंग विथ ऑनलाइन जीडीपी फर्स्ट विल प्रिंट as the every coder start printing with the hello world right so after writing over here we will run this program as you can see the first program we got with this syntax error okay so what do you mean by this syntax error while coding each and everything okay if we don't follow the rules okay then we will get this type of error now as you can see in syntax error it is showing that it is an invalid syntax perhaps you forget a comma but as you can see if in case if he's saying that you forgot a comma as a newbie in python you would be asking like or you would be just typing the comma over there and you can see it is still giving the syntax error. Whereas if I say, what do you mean by syntax? Syntax is basically a structure or we can say a rule that we need to arrange words, arrange paragraphs and phrases. Okay. So in this, the print hello world, if we need this double quotes to print over here. Now for now I'll just use this. Now you can see the hello world is printed over here. So basically what I did is I used some syntax and a set of rules to print this thing. If I if I want to print a number, okay, in double quotes,
it will give me the same. Whereas if I want to print hello Anand, now you can see it's printing to and hello Anand. In case if I just want to print hello Anand, there is a trick which we can say a comment. Okay, I just don't need the comment, the second line. Okay, so I'll use the hash. Using hash, you can just disable that line, or if you don't want that line, you can just use the hash trick so that not hash trick, you just want to use the hash so that the another thing, the print hello world, which you can see, would show in the compiler. So Its print is important in Python series. yes, what print is over doing is print is like our what you say library, a function. Print is our function. Okay. Okay. Yeah, the function is the whole topic, and further we're gonna learn about the function. Before that, I just want to start with the intro. Okay. Can you just repeat that hash part? Hash print. Yeah, I'll come to that. Okay. Okay. In case now you can see the main.py. Okay. Py is the extension for any file. Now, as you know, this online GDP, in case I just refresh this whole thing, okay, and the changes you made may not be saved and reload. So whatever changes you've been doing in this part will vanish. So if you want to save your code, then you have to log in with your email ID, okay, and password, and then you can log in and keep the code saved with you. So for right now, if I'm just go with this. तो पाइथन ये सुन के तुम लोग के मन में आता रहेगा कि ये एक बहुत कोडिंग लैंग्वेज है तो बहुत डिफिकल्ट होगा राइट तुम लोग के लिए बट देखा जाएगा तो पाइथन एक सबसे इजी लैंग्वेज है जो कि आजकल बहुत जगह यूज हो रहा है ठीक है तो हम लोग पहले एक चीज सीखते हैं कि पाइथन एक्चुअल में बनाया किसने सो फर्स्ट थिंग वी विल लर्न व्हाट पाइथन was created by whom python was created by Guido van Rossum and it was created in 1981 सो वेडो वैन रॉसम करके एक बंदा था जिसने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया उसने सिर्फ क्रिएट किया था राइट एंड देन ही पब्लिश्ड इट पाइथन लैंग्वेज इन 1989 तो इन केस अगर हमें ये जानना रहेगा कि पाइथन लैंग्वेज क्यों ही क्रिएट किया था क्या पर्पस था ये सब का वेल लेट यू नो कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज क्रिएट हुआ है जस्ट लाइक इंग्लिश जो कि हमें समझ में आता है राइट लाइक अगर हम लोग मशीन में बात करें तो मशीन में हमें 1010 में रहते हैं जो कि बाइनरी नंबर्स होते हैं राइट और ये नंबर्स हमें डिकोड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है whereas Python is a language where you can use to decode and let the program know what output you need to get from the program or the code. Okay. Whereas if I talk about the features of the Python, features of Python, Python is very simple. Okay, as I said firstly, and it is easy to understand.
whereas अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लाइक हमें पता है कि हाँ प्रिंट करना है, तो प्रिंट के अंदर कुछ भी डालो वो प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड डालो या फिर हेलो अरुण डालो, वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है वो। Whereas the second point is Python is an open source. ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब क्या होगा? ओपन सोर्स का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग पाइथन का एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। लाइक अगर तुम्हें पाइथन के बारे में सीखना है, ओके, पाइथन में अगर कुछ कोड करना है या फिर पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना है, सो इट्स ओपन सोर्स वेयर यू कैन इंटीग्रेट विथ मेनी प्लेटफॉर्म। सो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरएस बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोग ने सुने रहेंगे जैसे गो लैंग। तो ये सारे प्रीमियम वाले रहते हैं, ये पेड नहीं रहते हैं। तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज पॉसिबल पाइथन, it is possible to integrate other programming languages. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब हम लोग अगर दूसरे लैंग्वेजेस यूज करने चाहे तो हम लोग उसके साथ भी इंटीग्रेट करके पाइथन यूज कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी लर्न दैट what is Python. Okay, Python is a programming language. It's simple and easy to understand. Who created the Python? Guido van Rossum in 1981, and it was published in Python language in 1989. But you must be thinking what is the use of Python in our daily life, right? So as you can see, I'm writing this in some website, right? Okay. So why basically it is used? It is used for web development. जो भी हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं, जो स्विगी वगैरह है जहाँ से हम लोग फूड डिलीवरी करते हैं या फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स, दिस आर ऑल वेब वेबसाइट्स। ओके, सो इट कैन द पाइथन इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट नाउअडेज। तो हम लोग इसके सर्वर साइड पे भी काम करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक एप्स, जो कि व्हाट्सएप ऐप या फिर सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम। तो इन सभी चीजों में हम लोग पाइथन यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। It is nowadays, as you have heard that AI is booming, right? So it is also used in AI and machine learning. You must be thinking about the use of the Python in machine learning and what do you say, AI. It is basically used, or basically it has a many uses of it to simulate the human behavior and to learn from past data. I hope those who are going for data engineering or data analytics, they must be knowing that you all need to have the past data to do the analytics part, right? Whereas the Python is very much valuable while using this because in machine learning AI it is used to simulate human behavior. ये सिमुलेशन ह्यूमन बिहेवियर, ये चीज क्या होता है, ये एनालिटिक्स के टाइम पे आपको काम आएगा। ठीक है, अभी तो आपको ये बाउंसर ही जाएगा बिकॉज इसका भी इसमें यूज नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाइथन हम कैसे यूज करने वाले हैं एआई और मशीन लर्निंग के इसमें। एंड यू कैन सी हैज आई रिटन दैट लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विदाउट हार्ड कोडिंग। एआई में भी पाइथन है, राइट, बट अभी एआई ऐसा होगा कि हम लोग एक प्रॉम्प्ट में बहुत कुछ डेटा निकाल सकते हैं। हाउ? फ्रॉम स्पार्स डेटा, राइट। वो गूगल से या फिर दूसरे वेबसाइट से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके एक शॉर्ट
छोटे पार्ट में देते हैं, एक व्हाट यू से इन शॉर्ट फॉर्मेट कि आपने ये पूछा था और ये आपका रिजल्ट है वैसा। तो इसके लिए कोई हार्ड कोडिंग की भी जरूरत नहीं होती है हमें। सो पाइथन बेसिकली यूज फॉर मेनी थिंग्स, बट नाउ do you know how Python would be working for us? Like why Python is used basically, और Python इतना easy क्यों है? Okay, so let's start with this question: Why Python? हमें Python ही क्यों सीखना चाहिए as a first programming language? बिकॉज पाइथन एक ऐसा इजी लैंग्वेज है जो हम डे टू डे लाइफ में भी लाइक जैसे इंग्लिश में हम लोग बात कर देते हैं अपने कलीग्स अपने फ्रेंड्स से, तो हम जिस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम जब उनसे बात करते हैं, okay, we just use a simple English language, okay, and we communicate with them. Likewise, Python is a code where we can communicate with the system, or you can see the whole program. So Python has a simple syntax. जैसे हमने syntax एक बात किया था, what was the syntax? It is the arrangement of characters of the phrases in a structured way. Okay, it means एक क्या बोलते हैं, रूल ही होता है, वो रूल को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो वो एरर आएगा ही आएगा वैसा. So Python has a simple syntax which is similar to English language. As I said कि हम जैसे डे टू डे बेसिस पे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर केसेस है, तो इट्स वेरी इजी टू communicate with each other. Whereas ये जो syntax होता है, okay, syntax is the thing where syntax allows developer to write programs. मतलब ये syntax यूज करके ही कोई भी डेवलपर, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, कोई भी डेवलपर पाइथन में प्रोग्राम लिख सकता है. कैसे? विथ फ्यू लाइन्स. अगर यहाँ पे अगर कोई लाइक आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो, या फिर होगा भी तो उन्हें पता होगा कि जावा में और बहुत सारे सी लैंग्वेजेस में बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखे जाते हैं जिसका आउटपुट बहुत छोटा सा होता है, राइट. वेरएज अगर कंपेयर करोगे पाइथन से, अब तो उसका सिंटैक्स बहुत मिनिमम रहता है, ओके, एंड यूजिंग विद फ्यू लाइन्स वी कैन गेट सम, using the few lines we can code many things, okay, and compared to others, some other programming languages. आई होप इतना तक समझा होगा कि हम पाइथन एक्चुअली क्यों यूज कर रहे हैं और हमें पाइथन ही पहले स्टार्टिंग में क्यों सीखना चाहिए. ठीक है, बिकॉज पाइथन के इतने सारे यूजेस हैं, ठीक है, वो बहुत सारी जगह पे अभी यूज हो रहा है. मोस्टली अभी एआई तो बूम हो रहा है तो वहां पे तो बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है. वेयर पाइथन, अगर किसी ने पूछा कि अगर सपोज यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू आस्क्स that what do you mean by Python, why do we use it, so you can simply, the first statement, so the interviewer asks that what is Python. तो हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन समझ के रखना पड़ेगा पाइथन का, जहाँ पे हम उसे भी एक्सप्लेन कर सके कि पाइथन एक्चुअल में होता क्या और हम उसे करते क्या. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज, आई जस्ट राइट द डेफिनेशन. एक ये हार्ड कोड एक डेफिनेशन नहीं है, बट यू कैन कस्टमाइज इट as per your wish. Like मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भी आप बोल सकते हो, नहीं तो फिर आप एक बार पाइथन जान गए कि कैसे होता है, आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो. बट पाइथन में ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रहते हैं जो हमें क्लिक नहीं होते, ओके, एट द टाइम. तो हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है कि हाउ, लाइक हैज आई राइट, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज. अभी तक हम लोग ने सुना था इट्स अ सिंपल लैंग्वेज, राइट, इट्स इजी टू राइट, बट वी नो व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड. नो, हमें नहीं पता अभी स्टार्टिंग में, हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड, राइट. So before coming to dynamically type, I also need to explain you that Python is also a, मैं कॉमर्स करके लिखता हूँ सो दैट बहुत सारी चीजें होते हैं कि पाइथन क्या होता है, मतलब written and a high level programming language. So dynamically typed.
डायनेमिकली टाइप समझने से पहले मैं आपको इंटरप्रेटेड का मतलब समझाता हूँ, बिकॉज इसमें इंटरप्रेटेड में मुझे कोई कोड लाइक कोड लिख के आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई give you something that you can understand using it. Print प्रिंट क्या है? अपना एक फंक्शन है. ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आपको ये आपको पता है कि ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? We call this as parenthesis. I'll just write it down over here. ये जो ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स, इट इज नोन एज parenthesis. तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी एक वर्ड लिखा है पाइथन में विथ पैरेंथेसिस, समझ जाना है कि इट्स अ फंक्शन. ओके, क्या समझना है? इट्स अ फंक्शन. तो जब भी मैं बात करूंगा कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, या फिर आई वुड से आई वांट टू प्रिंट समथिंग, सो व्हाट वुड आई यूज प्रिंट फंक्शन. ओके, आई विल यूज प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन क्यों यूज करेंगे? टू प्रिंट whatever you desire, right? To print a code, print a message. Likewise, अभी मैं बताता हूँ आपको. अभी प्रिंट जैसे बहुत बार अभी हेलो वर्ल्ड हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे टुडे इज मंडे. ओके, प्रिंट आई हैड अ गुड डे. And the third line I would like to print is today I'm teaching Python. Okay, I'll just run this code. Before running this code, just have a look that आपने किसी को मतलब किसी लाइन को ऐसे छोड़ा ना हो. ठीक है, मैं इसका मतलब भी बताता हूँ, हैश का मतलब कि क्यों यूज किया. अब यू कैन सी वापस यहाँ पे एक दिखा रहा है सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग नेटवर्क. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट मिस किया, राइट? तो नाउ एज यू कैन सी कि एक एक करके प्रिंट हुआ. पहले टुडे इज मंडे प्रिंट हुआ, आई हैड अ गुड डे प्रिंट हुआ, फिर टुडे आई एम टीचिंग पाइथन प्रिंट हुआ. सो इंटर पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इंटरप्रिटेशन का ही मतलब होता है दैट it will run the code line by line. रन द कोड लाइन बाय लाइन मतलब ऐसा समझो कि जब हम लोग प्रोग्राम में तीनों प्रिंट लिखे, ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो पाइथन है, तो इंटरप्रेटर, ओके, यूज द वर्ड इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहला लाइन पढ़ेगा जो कि उसको दिखा टुडे इज मंडे, सेकेंड लाइन दिखा आई हैड अ गुड डे, थर्ड लाइन दिखा आई एम टीचिंग पाइथन. तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सब प्रिंट करेगा. Whereas एक और चीज होता है विच इज नोन एज कंपाइलर. कंपाइलर भी आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, बट कंपाइलर को अभी के लिए ऐसा समझो कि इन अदर लैंग्वेजेस we will use programming languages, not other languages. Programming languages, it compiles the whole code. Okay? Compiles the whole code का मतलब है कि जब एक ये रहता है, हमने पूरा कोड लिखा है, ठीक है, तो अगर सपोज आई हैड अ गुड डे के बीच में मुझे कोई एरर आ रहा है, तो कंपाइलर पता है क्या करेगा? वो लाइन बाय लाइन तो पढ़ेगा ही, ठीक है, बट वो सब कुछ प्रिंट कर देगा और फिर वो बताएगा कि लाइन नंबर 2 पे एरर है. ठीक है, वेरएस इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद से
आपको एरर जब वो लाइन पे है तो वही लाइन पे स्टॉप हो जाएगा। सपोज अभी मेरे को सेकंड लाइन पे ही एरर है तो सेकंड लाइन पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आप पे ये कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ पाइथन लैंग्वेज। As you can see वो I had a good day, वो आगे तक गया ही नहीं। टुडे आई एम टीचिंग पाइथन, ये वाला लाइन तो सही था मेरा, राइट? बट इस वाले में सिंटैक्स एरर था। तो इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि वो लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, ठीक है। इनकेस उसको बीच में ही एरर दिखा तो वो तो ही रुक जाता है और वो बता देता है कि वहां पे एरर है, तो वो आगे नहीं बढ़ता। वेरएज कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरा प्रिंट करेगा एंड ही विल टेल यू कि इसमें एक सेकंड वाले लाइन पे, सेकंड नहीं मतलब 37 लाइन आपको दिखता रहेगा। आई होप जूमिंग करते वक्त दिखे। तो 37 लाइन पे एरर है वैसा दिखाएगा। ओके, तो तो हमने इसमें क्या देखा, कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पाइथन, अगर सपोज इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट इज पाइथन, यू कैन आल्सो से पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ओके, इट रन्स द कोड लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर वर्ड आपको ध्यान में रहेगा। whereas compiler are used for other languages like C, C++, okay. Next thing, dynamically type. Before going to dynamically type, वो हमने variables का एक टॉपिक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि डायनामिकली टाइप क्या है, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट वन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें बाइनरी नंबर्स हम लोग यूज करते हैं। वैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इट हैव अ सिंपल सिंटैक्स, ओके, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो basically it's a high level language because it is easy to understand for us. आई होप यहाँ तक समझा होगा, मैं इतने टाइम से बड़बड़ रहा था। हेलो, Yes. ये समझा राइट? ओके, it's do you need to take a screenshot of this, Amit? Yes, If just you a minute. It's done with the screenshot. या सो वैसे ही मैं पीपीटी शेयर करूंगा जिसमें मतलब लिस्ट डाउन किया है कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं। बट वो सबसे कैसे आपको समझेगा नहीं, लाइक क्या बोलते हैं, बहुत उसमें टर्मिनोलॉजी यूज किया है जहाँ पे हम आपको स्टार्ट में तो नहीं समझेगा, बट हम जैसे जैसे पाइथन सीखते रहेंगे आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हमने यूज क्यों किया है, व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड इन दिस एंड व्हाई इट इज इजी टू लर्न वगैरह उसके फीचर्स। तो वो एक एक करके आपको समझेगा। बिफोर दैट, इन केस आपके पास पाइथन नहीं है सिस्टम में, ओके, आई शो यू दैट, क्योंकि हम बहुत टाइम तक इस जीडीबी पे काम नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज ये स्मॉल प्रोग्रामिंग के लिए इट्स इजी, ओके, फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स इट वुड बी इजी, बट इन केस वी नीड टू लर्न कि हमें एक्चुअल में पाइथन कैसे यूज करेंगे या फिर उसके कैसे कैसे फीचर्स है, तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए या फिर समझने के लिए हम लोग ये पाइथन पहले इंस्टॉल कर लेंगे अपने इस पे। तो देखा रहेगा मैंने गूगल पे लिखा पाइथन डाउनलोड और उसमें फर्स्ट लिंक आया है डाउनलोड पाइथन करके। So the first link is, as you can see, download Python is giving 3.13.3. What is this 3 point? It's actually a version. Okay, Python अभी इधर देखा जाएगा। ओके, नाउ वी कैन सी, देखो ये जगह पे रिलीज वर्जन लिखा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कब से जब से बनाया है तब से एक वर्जन है। ओके, वो कब से चालू हुआ था? 2.10 2.01 से। उसके बाद अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए
चीजें आते रहते, फंक्शंस आते हैं उसमें, लाइब्रेरीज इंपोर्ट होते हैं, तो वो सब ऐसे करते करते एक नया वर्जन क्रिएट होता रहता है. ओके, सो द लेटेस्ट वर्जन वी आर यूजिंग इज 3.13.3. तो उस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप हिट करोगे डाउनलोड पाइथन, आपको साइड में एक फाइल इंस्टॉल होते हुए दिखेगा. ओके, वो फाइल इंस्टॉल करने के बाद में यही चीज दिखेगी आपको. तो यहाँ पे आपको टिक करना है ऐड टू पाइथन और ये वाला पार्ट. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये दो बॉक्सेस टिक हो, एंड देन इट विल सेट अप द प्रोग्रेस. ओके, और 64 बिट होगा तो आपके लैपटॉप के हिसाब से या फिर आपके पीसी के हिसाब से आपको कितने बिट का चाहिए, बट मेक श्योर कि 64 बिट का हो. एंड जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप क्लोज कर सकते हैं. मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है पाइथन, इसके वजह से मैंने ये नहीं किया. एक मिनट. So after downloading the Python, you can go to the command prompt, या फिर आप इधर भी लिख सकते हो. I'll just show you कि command prompt में कैसे लिखेगा. अगर आपके सिस्टम में Python नहीं है, ओके, तो as Sandhya, I can see the Sandhya has joined. So Sandhya, before joining, I'll just let you know कि हमने यहाँ पे Python का डिस्कस किया है using the GDB Online. ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोड कर सकते हैं. ओके, वेयरएज अभी हम लोग पाइथन इंस्टॉल करने का प्रोसीजर देख रहे हैं जो मैंने इस पे दिखाया है, ये पीपीटी पे, कि वो कैसे डाउनलोड करता है. और ये तो पुराना वर्जन है, लेकिन आगे आगे अब ये जो लेटेस्ट वाला वर्जन है विच इज ये 3.33 वाला जो नया वर्जन है. तो अगर आपके सिस्टम में भी नहीं रहेगा तो आप वो डाउनलोड करके देख सकते हैं. ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन यूज दिस ऑनलाइन जीडीपी. आप सिर्फ गूगल पे जाके आपको जीडीपी ऑनलाइन लिखना है और वो आ जाएगा. वहाँ पे आप लॉग इन भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो सिर्फ आईडी पे क्लिक करके आपको एक नया स्क्रीन आ जाएगा. ठीक है, तो as I was saying that कि हम लोग जब पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम लोग को बस चेक करना है कि पाइथन एक्चुअल में आया है कि नहीं हमारे इसमें. तो हम CMD में जाके ओके पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन देन वर्जन लिखते हैं. Now you can see it is showing Python 3.13.2, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला मेरे इसमें इंस्टॉल हो चुका है. ओके, बट अगर बिफोर इंस्टॉलिंग पाइथन अगर आप चेक करते हो पाइथन यही सेम प्रॉम्प्ट लगा के, प्रॉम्प्ट नहीं यही सेम लिख के कि पाइथन हाइफन स्पेस डाल के हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको वो ब्लैंक दिखेगा या फिर आपको बताया जाएगा कि आपके इस पर पाइथन नहीं है. ठीक है, so after installing you can check in CMD that whether the Python is installed or not. तो आज सिर्फ इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हमने देखा है. और एक और चीज, जब ये इंस्टॉल होता है तो एक आइडियली करके ये होता है, इट्स एनवायरनमेंट. ओके, दिस एनवायरनमेंट. तो ये बेसिकली हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें पाइथन कोड करेंगे, राइट. और whereas ये आइडियली आपको पहले से इंस्टॉल रहेगा आपके इसमें,
जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसके साथ ही आ जाता है। तो IDLE इसका फुल फॉर्म, इट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे आपने सुना रहेगा कि कोई एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, हम लोग पाइथन एनवायरनमेंट करके बहुत सुनेंगे आगे जाके। बट बिफोर doing that, I'll just let you know what IDLE is. Basically, it's integrated development and learning environment. I know मैंने इसमें लिखा है जो कि हम उसमें भी ये कर सकते थे, बट ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे वहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये ऑनलाइन जीडीपी हम लोग सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं कि हम लोग ये पोर्टेबल है तो कहाँ पे भी हम लोग कोई भी पीसी पे हम लोग बैठे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सम सिस्टम्स अगर पाइथन नहीं रहा तो आप उधर बैठ के पाइथन तो इंस्टॉल नहीं करते रहोगे, राइट? तो फॉर सेफर साइड यू कैन यूज दिस ऑनलाइन जीडीपी अगर आपको कहीं पे भी यूज करना हो। नहीं तो फिर आप अपने सिस्टम पे अगर काम कर रहे हो तो यू कैन यूज द आइडिया दिस थिंग आइडियल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने अभी अभी लिखा था। अब ये नया एनवायरनमेंट है तो हम यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड से चालू करेंगे। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यू कैन सी वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ओके, इफ आई से प्रिंट हाय अमित, हाय अमित भी प्रिंट कर रहा है। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैं इसमें लिख रहा था पाइथन का तो मुझे एक ही साथ में जब मैं इसे रन करूं तो टुडेज मंडे आई हैव अ गुड डे ये सब एक साथ में लिख के आया, राइट? वेरएस ये पाइथन आइडियली शेल यूज करते वक्त ये साथ में लिख के नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको जैसे ही नेक्स्ट इस पे चला जाऊं, नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं एंटर दबाऊं तो वो प्रिंट हो जा रहा है अपने आप। मेरे को चांस नहीं दे रहा है कि मैं कुछ और प्रिंट कर सकूं, लाइक हे अमित या फिर हे संध्या ऐसे करके और प्रिंट नहीं कर पा रहा हूं। तो आइडियली में हमें एक फीचर है जहाँ पे हम लोग खुद का एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैंने बताया था दी एट स्टार्ट में कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझे कि हाँ ये कैसे लिखना है या फिर हमें वर्ड बाय वर्ड टाइप करना है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करते हैं आपको लगेगा कि अरे ये क्या पेस्ट किया, कहाँ से पेस्ट किया, तो समझेगा नहीं। नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं एंटर दबाया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नीचे, दिस फाइल इज गिविंग मी अ चांस टू राइट मेनी प्रोग्राम्स अंडर इट। ठीक है, now after writing this you can use this file, okay, you can save this file, okay, save as करके ये अभी अभी आप एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपका एक डेस्कटॉप में ये करके रख सकते हैं। तो मैं इसमें रख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम या फिर हाँ। नाउ ऑलवेज रिमेम्बर जब हम आइडियली यूज करते हैं, ठीक है, IDLE, ओके, दिस आइडियली जब हम लोग यूज कर रहे हैं तभी हम लोग को फाइल नेम किसमें सेव करना है, .py। वाई .py? py इज एक्सटेंशन फॉर पाइथन। ओके, जैसे आप .py लिखते हो तो सिस्टम को समझ में आता है कि हाँ इट्स अ पाइथन फाइल, तो इसे पाइथन की इसमें ही सेव करना है। ठीक है, एक्सटेंशन से समझ में आएगा कि हम लोग पाइथन का कोड सेव कर रहे हैं।
डेस्कटॉप में जाके आपको सेव। ओके, नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू रन। अगर आप रन पे क्लिक भी करोगे विदाउट सेविंग द फाइल, तो आपको फाइल सेव करने को पड़ेगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सारे चीज प्रिंट हो गए। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे, इट वाज अ शेल। ओके, दिस शेल। ओके, एंड देन व्हाट वी डिड, वी यूज द न्यू फाइल। ओके, वो न्यू फाइल पे हमने अपना प्रोग्राम लिखा और प्रिंट किया। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करूँ, वो उधर आएगा। मैंने मुंबई किया और फिर मैं उसको सेव करूंगा। बिफोर सेविंग अभी देखो, जैसे मैं मुंबई, कैन यू सी इधर एक स्टार दिख रहा है आपको? ठीक है, जैसे ही आप उसको अगर कीबोर्ड पे कंट्रोल एस करोगे तो चला जाएगा, मतलब वो सेव हो जाएगा फाइल। अगर आप उसको कुछ प्रिंट कर रहे हो, वापस स्टार दिखाएगा। वाई? बिकॉज वो सेव नहीं किया। तो सेव करते ही आपको ये दिखेगा, कंट्रोल एस दबाना है, सेव करना है, रन करना है, रन मॉड्यूल F5, आपको इधर प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, गुड बाय मंडे वगैरह। ठीक है, विदाउट सेव करके ऐसे भी रन कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं अभी मैं वापस लिखता हूँ प्रिंट। अभी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ नया लिखता हूँ, प्रिंट दुबई। ठीक है, अभी मैं दुबई लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तो एज यू कैन सी, इट इज शोइंग दैट सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। ओके, तो हमें बाय डिफॉल्ट उसे सेव करना ही पड़ता है। ठीक है, तो सीधा अगर हम लोग रन पे हिट करेंगे, ठीक है, रन मॉड्यूल पे हिट करेंगे, तो वो अपने आप कभी रन होगा जब फाइल सेव रहेगा। अगर फाइल सेव नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन पूछेगा, फाइल सेव करो, देन ओनली ही विल रन दिस कोड। ओके, तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही सीखा है। ओके, पाइथन में पाइथन के फीचर्स, और पाइथन में इंस्टॉल करना, एंड one more thing, this ideally this environment we gonna use furthermore for many codes। ठीक है, तो अगर जो भी कुछ रहेगा कि हमें कुछ थ्योरी समझना है, या फिर हम कोई भी चीज सीखने से पहले थ्योरी में समझाऊंगा, ठीक है, तो थ्योरी में इसी में ही लिख के बताऊंगा। तब हमें जब स्विच करना हो प्रोग्राम्स के लिए, तो हम ये रेफर कर सके। ठीक है, मैं ये वाला लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैट्स पे। हाँ, एंड आई वाज सेइंग अबाउट दिस पीपीटी। ये पीपीटी में बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह है, but for now, for the extent, we can just look at the features, what Python features offer to us, that how it is used. Okay, so first is, it is said that easy to learn। as मैंने starting में बताया, it's easy to समझना ही बहुत सिंपल है पाइथन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। जैसे अभी मैं प्रिंट लिखा तो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, फंक्शन यूज करके। सेकेंड इज, इट इज इजी टू रीड। क्यों इट इज इजी? बिकॉज पाइथन कोड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एज विजिबल टू आईज। लाइक हमने लिखा प्रिंट के अंदर बहुत कुछ, ठीक है, हमने इंग्लिश में ही लिखा और वो समझने में भी सिंपल था। सो इट इज इजी टू रीड। पाइथन फीचर्स इज इजी टू मेंटेन। ओके, ये जो पाइथन की सोर्स कोड हम लोग जो लिख रहे थे, ठीक है, fairly it is easy to maintain। why it is easy to maintain, ये आगे जाके समझेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कोड करेंगे। ठीक है, तो कोड को कैसे सेव करना है, कहाँ रखना है, हाउ वी कैन यूज दोस कोड इन फ्यूचर, ये सब हम इसमें से ही सीखेंगे। फोर्थ थिंग इज अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था।
नहीं, पाइथन में लाइब्रेरी होता है जहाँ पे ये जो फीचर्स है जैसे पाइथन एक फंक्शन था, तो कहाँ से आता है? एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो प्रोवाइड करता है प्रिंट फंक्शन। ओके, तो वो वही कहना चाह रहा है कि इसके अंदर पाइथन में एक ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो लाइब्रेरी हमें जैसे उसका फीचर्स होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के भी फीचर्स समझने वाले हम लोग आगे जाके, तो वो चीज हम लोग यूज करेंगे इन कोड। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन यूनिक्स, विंडोज, मैनिटोश, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हमने विंडोज से सुना है मोस्टली, और एप्पल में मैक करके सुना है, तो मैक के पहले वाला वर्ड है, उसका पहले का नाम है, बट अभी हम लोग उसको मैक बुलाते हैं। ठीक है, विंडोज, यूनिक्स, ये सब में यूज होता है। ठीक है, हम कोई भी प्लेटफॉर्म में ये पाइथन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज इंटरेक्टिव मोड। व्हाई इट इज इंटरेक्टिव मोड? बिकॉज हम लोग जब अभी जैसे आपने देखा रहेगा कि हम इधर लिख रहे हैं प्रोग्राम, इधर हम लोग टाइप कर रहे हैं एंड दूसरे पेज पे वो कुछ रोल हो रहा है। ठीक है, इधर जाके मैं एडिट करता हूँ, सेव करता हूँ, क्या क्या नाउ इट्स गिविंग अ सिंटैक्स एरर। व्हाई? क्योंकि मैंने इधर रूल फॉलो नहीं किया। और जो रूल की मैं बात कर रहा हूँ वो रूल हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देखो दुबई 5, तो इधर अपने आप प्रिंट होता है, और जैसे हमने इसमें भी देखा था कि वो वन बाय वन प्रिंट होता है। So it's an interactive session, not interactive. It is an interactive language where we can type and learn much more things. Also by debugging of snippets of code. और ये जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी, डीबगिंग, ये सब बहुत नया रहेगा आप लोग के लिए स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हम जब कोड करेंगे जब हम लोग समझेंगे कि इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, वाई हम उसे वही उसे यही क्यों बुलाते हैं, तो उसे आगे जाके हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। Whereas the third last feature is portable. Why it is portable? Because Python can run on wide variety of hardware platform and has the same interface on all platforms. मतलब Python इसलिए पोर्टेबल है क्योंकि हम लोग Python कोई भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो पोर्टेबल अगर आप लोग सपोज बताते रहेंगे किसी को फीचर्स इसके बारे में, तो पोर्टेबल में यू कैन जस्ट say that Python can run on a wide variety of hardware platforms, or you can say a various platforms. Hardware platform अगर आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता रहेगा तो instead you can say a various platforms and you can mention the platforms like Unix, Windows and Mac. Okay, whereas extendable. Why it is extendable? इसका मतलब क्या है? You can add low-level modules of the Python interpreter. These modules enable programmers to add or to customize their tools to be more efficient. ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है और ये बाउंसर भी जाएगा क्योंकि ये हमने अभी तक समझा ही नहीं है कि ये क्या होता है, कि हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, इसको एफिशिएंट क्या बना सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो हमने यही पढ़ा है कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, राइट? सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझेगी, डेफिनेशंस वगैरह, बट जैसे हम कोड करते रहेंगे आपको समझेगा। ओके, सो ये देख के ऐसा डरना मत, बट ये सारे कुछ डेफिनेशंस है, फीचर्स है जो हम लोग आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, पाइथन आल्सो यूज इन डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के बारे में तो हम आगे जाके और बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि पाइथन हम डेटाबेस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सो गाइस, क्विक रिवीजन ऑफ आज हमने क्या किया था, और कल से हम लोग अपना टॉपिक चालू कर देंगे। ओके, मैं पीपीटी में ही आपको दिखा देता हूँ कि कल का नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स से रहेगा। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज समथिंग। ओके, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन में क्या सीखा था कि पाइथन किसने क्रिएट किया? इट इज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन ब्रॉसम। अगर इसको प्रोनाउंस करने आपको नहीं जम रहा है तो यू कैन जस्ट रिपीट इट अगेन विथ मी। गाइडो वैन ब्रॉसम। ओके, ये मोस्टली कोई पूछता नहीं, बट यू शुड नो कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो सीखने का, तो वो क्यों बनाया है, किस पर्पज से बनाया, किसने बनाया। Okay, so need to remember that Python was created by Guido van Rossum in which year? In year 1981 उसने क्रिएट किया था और पब्लिश टू द
पब्लिश पाइथन लैंग्वेज कहाँ पे, इन पब्लिक, पब्लिक में उसने रिलीज किया था वो चीज। एंड कौन से ईयर में उसने रिलीज किया था, इट वाज इन 1989। वेयर एज हमने उसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स में क्या पढ़ा हम लोग ने कि पाइथन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट कैन बी यूज्ड विद मेनी इंटरेक्टिव platforms. Okay, it is possible to integrate with another programming language. यही चीज के बारे में बोला था कि वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। Whereas हमने ये समझना है कि why it is used for, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होगा, उसका पर्पस क्या है, कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं मोस्टली। वेब डेवलपमेंट, जैसे हम लोग वेबसाइट्स के बारे में मैंने बताया एग्जांपल, जोमेटो का वेबसाइट, स्विगी का वेबसाइट, ये सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे फूड डिलीवरीज वगैरह होते हैं, तो ये डेवलप करने के लिए काम आता है पाइथन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे हम लोग के सोशल मीडिया से लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलप सॉफ्टवेयर है जो पाइथन उसमें यूज किया गया है। वेयर जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एआई अभी बहुत कुछ चल रहा है, एक बहुत बूम हो रहा है, ठीक है, एआई एंड एमएल। तो इट इज ऑल्सो यूजिंग एआई एमएल टू स्टिमुलेट द ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विदाउट हार्ड कोडिंग। हम पास्ट के डेटा लेके एनालिटिक्स करके पाइथन का यूज करके विदाउट यूजिंग एनी हार्ड कोडिंग हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि वाई पाइथन, पाइथन ही पहला लैंग्वेज हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों सी नहीं सीखा, क्यों सी प्लस प्लस नहीं सीखा। बिकॉज पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेजेस, बिकॉज इट्स इजी टू कम्युनिकेट, ठीक है। हम मशीन के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाले, बात करने वाले, हम उसे कमांड्स देंगे, वो हमें आउटपुट देगा, हम उसे बहुत सारे इनपुट देंगे कि ये चीज को ये कर, वो कैसे करेंगे जब हम लोग उसे समझाएंगे, ठीक है। और किस लैंग्वेज हम लोग समझाने वाले उसे, इन इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज अ प्रिफरेबल लैंग्वेज फॉर पाइथन, ओके। वेयरएज इसके अंदर सिंटैक्स, ये जो मैंने सिंपल सिंटैक्स की बात की थी ना, हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज सिंटैक्स, एक ऐसा नया वर्ड है। तो हम सिंटैक्स के बारे में हमने क्या समझा कि सिंटैक्स अलाउ डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम विद फ्यू लाइन्स, ठीक है। मतलब ये जो सिंटैक्स होते हैं एक रूल होते हैं, ठीक है, यूजिंग दैट कि हम थोड़े बहुत लाइन्स लिख के जो भी हम लोग का इनपुट, जो भी हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, जो भी हम लोग का डिजायर आउटपुट है, यूजिंग सिंपल लाइंस हम वो कर सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स के बारे में हम आगे जाके और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड या एज इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने सोचा कि कोई एक डेफिनेशन, एक हार्डकोर डेफिनेशन होना चाहिए राइट पाइथन का। बट नो नीड ऑफ हार्डकोर डेफिनेशन, हम पाइथन क्या होता है ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। एक बार आप पाइथन सीखना चालू कर दोगे तो हमने यहाँ पे, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे जो कि समझने में थोड़ा यूजफुल रहेगा। और ये थोड़ा, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज है, इंटरप्रेटेड, डायनेमिक, इट इज यूज की आपको कि इंटरव्यू को भी समझे कि हाँ इसे ये वर्ड के बारे में पता है, ठीक है। सो first, what is Python? Python is a dynamically typed language. Okay. First, second, it is interpreted. Third, it is high level programming language. Dynamically type के बारे में हम next session में discuss करेंगे। Interpreter के बारे में आज हमने discuss किया because it was very easy to understand. What is interpreter? It will run the code line by line. लाइन बाय लाइन का मतलब ये था कि जैसे मैंने प्रिंट टुडेज मंडे, आई हैड अ गुड डे, टुडेज आई एम टीचिंग पाइथन, ये सारी चीजें लिखी, बट मैंने क्या चीज मिस किया था यहाँ पे, ये कोड्स, और फिर मैंने इसे रन कर दिया था। तो ये केस में क्या हुआ कि उसने बरोबर बता दिया कि ये वाले लाइन पे आपको सिंटैक्स एरर है, तो वो पता क्या करेगा, जो ऊपर का है, ठीक है, उसको बराबर लगा, वो नेक्स्ट पे गया, उसको ये वाला गलत लगा तो इधर ही स्टॉप हो गया वो। इंटरप्रेटर ये लाइन पे ही स्टॉप हो गया 38th लाइन पे, क्योंकि उसे उधर गड़बड़ लगी कि वहां पे सिंटैक्स हो गया, वो आगे तक गया ही नहीं। वेयर अदर लैंग्वेजेस क्या करते हैं, वो सारा कोड पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो पूरा कंपाइल करते हैं, ये जो वर्ड यूज किया कंपाइलर, पूरा कंपाइल कर देते हैं एंड देन दे शो कि हाँ यहाँ पे जो सेकेंड लाइन था, हाय वो गुड डे, यहाँ पे एरर था, बट ये वाला सही था तो मैंने ये वाला भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो हमने यही डिफरेंस समझा है, कंपैरिजन ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। वेरएज हमने ये भी समझा कि प्रिंट के साथ ये जो ब्रैकेट है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस,
ओके, नेक्स्ट GDB ऑनलाइन कंपाइलर के बाद हमने आइडियली क्या होता है वो समझा। वो सीखने से पहले हम लोग ने समझने से पहले हमने क्या किया था, पाइथन इंस्टॉल किया था, राइट। ये वाले स्टेप्स हम लोग ने यूज किया। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग वी यूज कमांड प्रॉम्प्ट टू सी वेदर वी हैव इंस्टॉल्ड और नॉट। तो कैसे इंस्टॉल हमने चेक किया, इंस्टॉलेशन पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन लिख के, तो यू कैन सी कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है। Yeah. So that's all about today. हम और एक्सटेंड नहीं करेंगे इससे, ठीक है, क्योंकि आज के लिए इतना इनफ हो गया। फर्स्ट सेशन में इतना कुछ सिखा दिया है, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखने के लिए ही डिफिकल्ट होगा। बट टाइम बाय टाइम हमें बहुत कुछ चीज़ें समझेंगे और हमें याद भी रहेगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इसे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आई जस्ट एंड ओवर हियर।